Namaste to all the participants present here. I, Vikas Kumar, welcome you all in today's training program, which is based on STEM education. And the topic for today's session is cultivating creativity and computational thinking in STEM areas. So, as we all know, that STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics. But what do we need to actually understand that what is the use of the system? What is this concept in totality? What do we need to do? What are the actions that we need to take as a educator, as a teacher? So before we dive deep into this topic, once again I welcome you all and good evening to all of you. I am seeing a lot of comments. Please tell me your subject. Write in the chat box about your subject, which subject you teach, just the subject. Social science, yes. English, Hindi, math. So overall, we do have teachers from each subject, each language, I think. And definitely you are from various schools. So let's start this topic. So STEM is not a subject. In today's सेशन अगली 1 घंटे में जो हमारी डिस्कशन होने वाली है मैं पहले क्लियर कर दूं स्टेम इज नॉट अ सब्जेक्ट स्टेम कोई सब्जेक्ट नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेम हम किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हम ये नहीं कहते कि ये साइंस में लेके आना है हम ये नहीं कह रहे इसकी मैथ्स के टीचर को ये पढ़ाना है या हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश के टीचर हिंदी के टीचर संस्कृत के टीचर पीएचई वाले टीचर म्यूजिक वाले टीचर डांस वाले टीचर ये नहीं कर सकते so that is why in the very beginning of the ppt what we have written is STEM is not a subject, it's a mindset. And what we need to do, we need to inspire curiosity, we need to inspire creativity and problem solving skill in our learners together. Okay, now can you answer this question? What is the one word that comes to your mind when you hear STEM education? वो सबसे पहली बात क्या है जो आपके दिमाग में आती है जब आप STEM एजुकेशन सुनते हो? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दीजिए वो पहली चीज क्या है जो आपके दिमाग में आती है जैसे ही आप STEM एजुकेशन सुनते हो? क्रिएटिविटी, थैंक यू निशा मैम, पॉजिटिव थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, थिंकिंग, इनोवेशन, ग्रेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन इनोवेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, मैंने रेस्पॉन्सेज आर कमिंग। आप ये सारी चीजें समझते हैं कि जब आप स्टेम एजुकेशन की बात करते हैं और ये जितनी भी चीजें आपकी आ रही कहीं ना कहीं ये स्किल से रिलेटेड है। सो किसी भी विषय की हम बात करें, किसी भी विषय में स्टेम को इंटीग्रेट करने की बात करें, हमारा गोल वही है। हमारी गोल क्या है? वी नीड टू foster creativity, we need to foster the critical thinking, we need to foster the complex thinking ability, and we need to make our learners aware about the real world problems, है ना? बुकिश प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बच्चे सीख जाते हैं, प्रॉब्लम आती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, है ना? वो कनेक्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअली उनके जीवन में किस तरीके की समस्याएं आएंगी। सो व्हेन वी opt the method of STEM education, we actually make them aware about the real world problems. And not only the problems, we equip them with the problem solving ability or skill. So that हमने उन्हें बताया कि हाँ ठीक है भाई, रियल वर्ल्ड में इस तरीके की समस्या आएंगी। ये पहला पार्ट है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी इक्विप देम विद द एबिलिटी जिसके कारण वो उन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, वो एबिलिटी भी हमें ही सिखानी है। सो दैट इज समथिंग which comes in STEM education. So today's objective is also the same. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें, कई सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे
हम लोग क्लासरूम में स्टेम को इनकलकेट करें सो दैट क्रिएटिविटी बढ़ती जाए बच्चों की, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती जाए बच्चों की, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है उससे वो रूबरू हो पाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती जाए। वंस अगेन मैं बता दूं, स्टेम जो है, the S of STEM stands for science, T stands for technology, E stands for engineering, and M stands for mathematics. So when we talk about STEM, it is an interdisciplinary approach. Interdisciplinary approach means we are not bound to stick with only one subject. ऐसा नहीं है कि STEM के सबसे पहले वर्ड में साइंस आता है तो सिर्फ साइंस टीचर यूज करने वाले हैं, या टेक्नोलॉजी की बात आ रही है तो कंप्यूटर टीचर भी शायद यूज कर ले, या मैथमेटिक्स की बात आ रही है तो मैथमेटिक्स टीचर यूज करेंगे। मैं बार बार ये आपको बता दूं, STEM is something where there is no any boundary for subject. It is interdisciplinary, it is transdisciplinary. You can connect one subject to another and you can work on that. So what it does, the very first thing, STEM encourages students to apply knowledge in real world contexts. हमारी जो डिस्कशंस होती हैं, वी जनरली डिस्कस की क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे ही लेन दिया जाता है, बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं, बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं, है ना? कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर पाते वो उस क्वेश्चन में। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉमन सेंस कम्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो बच्चे बुकिश नॉलेज तो ले रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई इट इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। सो व्हेन वी ऑप्ट दिस स्टेम एजुकेशन मेथड, वी इनकरेज आवर स्टूडेंट्स कि वो नॉलेज को अप्लाई कर पाए रियल वर्ल्ड में। देन वी एम्फसाइज ऑन हैंड्स ऑन, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग। And not only that, we also promote the problem solving mindset. What is the problem solving mindset? मैं आपको बता दूं, we all are working और हमारी जो वर्क प्लेस है वहाँ कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, है ना? और उन समस्याओं का समाधान जो है, दिस सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम्स, उसके दो तरीके हैं। प्रॉब्लम आएगी तो आप अपनी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं, फिर अथॉरिटी दिमाग लगाती है, उसका कोई एक सॉल्यूशन ढूंढती है। ये वो चीज है जो काफी सारे लोग करते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास आई, उस प्रॉब्लम का हम एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो सबसे अच्छा हो सकता है, और उस सॉल्यूशन को हम प्रेजेंट करते हैं अपनी अथॉरिटी के पास। देन दे पास इट और दे मॉडरेट फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट, देन दे पास इट। उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हैं। एक होता है प्रॉब्लम को देख लेना, प्रॉब्लम को पहचान लेना और पैनिक कर जाना। दूसरी चीज होती है प्रॉब्लम को देखना, प्रॉब्लम को पहचानना एंड देन स्टार्टिंग to find the solution of it. When we talk about the problem solving mindset, that is the mindset कि परेशानी दिखी, समस्या दिखी तो ठीक है, एक ह्यूमन नेचर होता है, आप हल्के फुल्के पैनिक करेंगे, बट एट द एंड you will quickly start thinking about the solution of it. You will quickly start working on how to solve that issue. That is problem solving mindset. तो STEM एजुकेशन के थ्रू हम इस चीज के लिए भी प्रमोट करते हैं बच्चों को। The next part is why STEM. So, as we all know, STEM is something which is known because it prepares learners for the future. है- हम उन क्वालिटीज की बात कर रहे हैं when we talk about creativity, when we talk about critical thinking skill, when we talk about problem solving skills, we are basically preparing the learners for the future. So if we are preparing the learners for the future, there are few skills that is required, और हम उसी स्किल की बात करें STEM के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, the data shows that 85% of future jobs will require STEM related skills, because देखिए, इसको ऐसा समझते हैं हम लोग, आज से आप 50 साल पीछे जाएंगे, हाईली क्वालिफाइड लोगों की कमी थी और जॉब्स जो थी
जिनमें हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए होते थे, वो थी एग्जिस्ट करती थी, थोड़ी कम रेशियो में थी। सो कम पढ़े लिखे लोग होते थे हाई लेवल तक, तो वो वहां जाते थे, ऑब्वियसली स्किल्स भी उनके पास होती थी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द गवर्नमेंट और एनी बॉडी इज वर्किंग वेरी हार्ड, एनजीओज मेहनत कर रही है, गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, एंड देयर मोटो इज टू, भाई हमें लिटरेसी स्किल को 100% टच करा देना है, सबको पढ़ा लिखा बना देना है। सो अ टाइम विल कम when 100% of the population will have a degree of matric, 12th or graduation or anything else. Till the date, each year approximately 75 lakh students graduate and not 5% of them get a good job. So ये data जो है ये काफी disturbing है. The problem is if you again see the data, आप देखेंगे that आप किसी भी गांव में चले जाएं, आप किसी भी शहर में चले जाएं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, वो हमेशा ये बात कहते हैं दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर, बेरोजगारी है हर तरफ, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नौकरियां नहीं है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, आप किसी न किसी स्कूल के हिस्से हैं, आंसर वन क्वेश्चन वेरी ऑनेस्टली, क्या ऐसा नहीं होता कि आपको फील होती है दैट वी आर लैकिंग इन गुड टीचर्स? रेज्यूमे काफी सारे आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे बिकॉज द क्वालिटी दैट यू आर सीकिंग इज नॉट प्रेजेंट। यस, प्लीज राइट यस और नो, है ना? कभी न कभी आपको फील होता होगा कि हाँ हमारे स्कूल में तो है ऐसा, थोड़ी सी तो कमी है, बहुत मेहनत होता है एक अच्छे टीचर को ढूंढने में। व्हाट आई मीन टू से इज we have a huge population with the degree, but we have a very less population with the skill which is required. So what today our country is facing is not unemployment, it's unemployability. हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास वैसे लोग नहीं है जो उस नौकरी के लिए सुटेबल हैं, because they do not have the skill. So हम अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़े थोड़े बदलाव ला रहे हैं, सो दैट वो जिन स्किल्स की कमी की बात करती हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स, आप किसी भी फॉर्च्यून 5 कंपनी की बात कर लो, टॉप हंड्रेड्स की बात कर लो, वो जिन स्किल्स की कमी बताती हैं कि जो नए लर्नर्स आ रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनमें ये कमी है, वी इन द स्कूल एजुकेशन वी ट्राई टू mend that gap, we try to bridge that gap so that वो स्किल उनमें रहे। So that is why that is written that 85% of the future job will require STEM related skills. Now, when we opt the method of STEM education, we build future ready learners. हम ऐसे learners build करते हैं जो future के लिए ready हैं। We build those learners who are ready to accept and adapt to rapid technological changes. Now, if you will again observe few things, अगर आपकी एज 40-50 साल है, 55 साल है, तो भी आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएँगे। आपकी एज 25 साल है, मैं मान के चलता हूँ कि 25 साल, 24 साल से पहले कोई टीचिंग लाइन में नहीं आ पाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन करते हैं, आप बीएड करते हैं, फिर सर्टेन एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उसके बाद आप पहुँचते हैं, तो उतना वक़्त लगता है। आप रिलेट कर पाएँगे। जब आप अपने चाइल्डहुड में थे, देयर वाज़ अ सर्टेन देयर वाज़ अ सर्टेनिटी आई कैन से, चीज़ें लगभग-लगभग स्टिल थी। कुछ खास नए इन्वेंशंस नहीं हो रहे थे। अगर मैं बात करूँ 1970, 1975 की, तो बदलाव कैसी चीज़ों में हो रही हैं, तो कुछ नई गाड़ियाँ आ जा रही हैं, है ना? कुछ नए मॉडल्स आ जा रहे हैं, कुछ लंबे-लंबे वक़्त के बाद। रेडियो में कोई नई फ्रीक्वेंसी जुड़ जा रही है ना? या रेडियो का डिज़ाइन चेंज हो जा रहा है ना? वॉल्यूम बढ़ाने वाले जो हैं, वो थोड़ा-सा स्पीकर इस बार और फ़ास्ट आ गया। इससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे बदलाव आने स्टार्ट हुए।
इलेक्ट्रिसिटी गांव-गांव तक पहुंचनी स्टार्ट हुई। टीवी डेवलप होने स्टार्ट हुए, फिर टीवी का डेवलपमेंट आया। जब इंडिया में टीवी ज़्यादा मार्केट में पहुँची तो उसने चेंज करा खुद को काफ़ी रैपिडली। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई उसके बाद कलर टीवी अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर आने में टाइम लगा है, कलर टीवी को डेवलप करने में टाइम नहीं लगा। आप देखेंगे जो सबसे पहला वर्ज़न आया किसी भी चीज़ का, उसके नेक्स्ट वर्ज़न को आने में थोड़ा वक़्त लगा। उसके बाद वाले अपडेट्स काफ़ी जल्दी-जल्दी आते जा रहे हैं। कंप्यूटर्स जिन्होंने यूज़ किया है, याद करिए विंडो एक्सपी था, काफ़ी लंबे वक़्त तक चला। फिर कहीं जाके विंडोज़ 7 आया, फिर कई सालों तक विंडोज़ 7 चला, फिर विंडो 8 आया। विंडो 8 के थोड़ी ही देर साल बाद, कुछ ही साल बाद विंडो 10 आ गया। विंडो 10 का प्रो आया, विंडो 10 का अल्टीमेट आया और भी कई सारे वर्ज़न आए, अपडेट्स आते गए। विंडो 11 आ चुका। माइक्रोसॉफ्ट इज़ वर्किंग ऑन विंडो 12। फ़ोन्स की बात करें, एक ऐसा फ़ोन था जिसमें इनकमिंग के लिए भी पैसे लगते थे। उसके पहले टेलीफ़ोन था, फिर फ़ोन पे आए, जैसे ही वायरलेस फ़ोन पे आए, आप समझिए उस वायरलेस फ़ोन ने कितने रूप बदले हैं और कितनी जल्दी-जल्दी बदले हैं। आज हम जब कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, तो हम ये पता कर लेते हैं कि या सोच लेते हैं, ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे के 2 साल, 3 साल में कौन-कौन से बदलाव आ सकते हैं। पूरी बात का मैं क्रक्स ये कह दूँ कि जैसे-जैसे हम वक़्त में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ता जा रहा है। जो बदलाव पहले धीरे-धीरे होती थी, वो बदलाव अब काफ़ी जल्दी-जल्दी होती है और इस जल्दी-जल्दी से होने वाले बदलाव को एडॉप्ट और एक्सेप्ट करने के लिए जो हमें पॉपुलेशन चाहिए, जो हमें लर्नर्स चाहिए, जो हमें जनरेशन चाहिए, उसको हमें कुछ स्किल्स देनी पड़ेंगी और वो स्किल हम स्टेम एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर पाते हैं। डेवलप्स क्रिटिकल लाइफ स्किल्स स्टेम करते ही हमने स्टार्टिंग से बात करी है। सो व्हाट इट डज़, it encourages exploration, it encourages curiosity and deeper understanding. अब मैं जब एक्सप्लोरेशन की बात करता हूँ, जब मैं क्यूरियोसिटी की बात करता हूँ, जब मैं डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूँ, तो ये 2 चीज़ें चलती हैं। When I talk about exploration, I talk about manual exploration, the real world exploration, I talk about the digital world exploration, है ना? But exploration is necessary. When I talk about curiosity, curiosity leads to research. सो मेरा काम क्या है? मैं स्टेम एजुकेशन के थ्रू बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहा हूँ। सेकंड काम मेरा ये है कि मैं उस क्यूरियोसिटी को नर्चर करता रहूँ, मैं उस क्यूरियोसिटी को दबाऊँ नहीं। जब मैं क्यूरियोसिटी को नर्चर करूँगा तो बच्चे जो हैं वो रिसर्च की तरफ बढ़ेंगे। जो प्राइमरी रिसर्च है उनकी, वो ऑब्वियसली गूगल से स्टार्ट होती है, एआई पे जाती है। बट इफ आई विल कीप ऑन नर्चरिंग, वो बुक्स तक भी पहुँचेगी, वो बड़े लोगों तक भी पहुँचेगी। हो सकता है कि वो और डीप रिसर्च में भी पहुँचे। एंड द एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी, देन द रिसर्च, रिसर्च के कारण एक्सप्लोरेशन होती है एंड दिस ऑल गिव्स द फाइनल a deeper understanding of any topic, life, situation or whatever we can say. So that's a step wise process जो कि हमें STEM education से ही मिलती है। नेक्स्ट इट एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैं यहाँ पे अगेन एक आपको बात बता दूं। अभी आप देखते हैं काफी सारी चीजें फेमस है, लाइक देयर इज अ टर्म ऑफ ओवर थिंकिंग, काफी ज्यादा फेमस है। काफी सारे ओवर थिंकर्स पैदा हो रहे हैं ना। आप क्लासेज में जाएंगे, 9 10th 11 12th, आप बच्चों से पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ यू ओवर थिंक और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट योर फ्रेंड्स ओवर थिंक। पहले वाले क्वेश्चन पे शायद जवाब ना आए, बट आप जैसे ही पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट योर फ्रेंड्स ओवर थिंक, वो हाथ उठा देंगे, हाँ मेरा वाला दोस्त जो है वो तो खूब ओवरथिंक करता है। ये मेरे बगल में बैठा है या बैठी है, दिमाग खराब कर देता है या कर देती है, ओवरथिंक कर करके। व्हाट इज़ ओवरथिंकिंग मैं बता देता हूँ। या फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं, डू वी नॉट थिंक? क्या हम नहीं सोचते हैं? टीचर्स यस और नो? डू वी नॉट थिंक? वी ऑल डू। हम सभी सोचते हैं, ऑब्वियसली सोचते हैं। देन व्हाट इज़ ओवरथिंकिंग? Overthinking is a state when you are thinking about something but you are not able to make any decision. So आप सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, but you're not able to find a solution to the problem. You're not able to make a decision, or you're not able to logically reason with the problem or the situation, whatever you may be facing, which leads to overthinking.
सो ओवर थिंकर्स हमारे पास हैं, भरे पड़े हैं हमारी क्लासेस में। स्टेम एजुकेशन से जब हम कई सारी स्किल्स, कई सारी एबिलिटीज सिखाते हैं, तो बच्चों के अंदर ये 3 एबिलिटीज आती हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है इन ईच एंड एवरीथिंग, इन देयर एकेडमिक, इन देयर को-करिकुलर और इन देयर नॉन करिकुलर एक्टिविटीज। इन तीनों ही फेजेज में लॉजिकल रीजनिंग हेल्प करती है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग हेल्प करती है प्रॉब्लम को पहचानने और सॉल्यूशन को ढूंढने में भी। और अगर ये दो चीजें हो पा रही हैं, देन डेफिनेटली द लर्नर विल बी एबल टू मेक अ माइंडफुल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये नहीं कहता करेक्ट डिसीजन, आई एम सेइंग माइंडफुल डिसीजन। उसने जो भी डिसीजन लिया वो माइंडफुल होगा, उसने सोच समझ के लिया होगा, एंड द डिसीजन विल बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब उसने क्या डिसीजन लिया वो उसे पता है, और डिसीजन के इम्पैक्ट क्या होंगे वो उसे पता है, प्रोज क्या होंगे वो पता है, एंड कॉन्स क्या होंगे वो पता है। दैट इज अ इन्फॉर्म्ड एंड माइंडफुल डिसीजन। तो ये स्किल स्टेम एजुकेशन के थ्रू आ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज बूस्ट करियर रेडीनेस। इट इंक्रीजेस अवेयरनेस ऑफ हाई डिमांड, हाई ग्रोथ करियर पास। मैं काफी करंट सिचुएशन पे लेके आता हूँ। पिछले 2 साल में हमने देखा दैट बिहार गवर्नमेंट इज हायरिंग टीचर्स। टीचर्स की रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग प्रोसेस रैपिडली हुई है बिहार गवर्नमेंट में। विथ दिस व्हाट यू विल सी कि बीएड में एडमिशन काफी जल्दी जल्दी हुए। बट द प्रॉब्लम इज, सपोज मैं बिहार को एक शहर मान लेता हूँ, छोटा सा, ताकि हम इमेजिन अच्छे से कर पाए। उस एक शहर में 8, 10, 15, 20 स्कूल होंगे। वो स्कूल इस बेसिस पर खुले होंगे कि उस शहर में बच्चे कितने हैं या कितने बच्चे हर साल स्कूल में इनरोल होते हैं, रेशियो क्या है, उस बेसिस पे वो स्कूल्स हैं। और हर स्कूल का 100+ और 100- करके आप एक स्ट्रेंथ फिक्स्ड है, लगभग लगभग। प्राइवेट स्कूल्स में भी ये होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये होता है। उसके बेसिस पर उनके टीचर फिक्स्ड हैं। अब 2 सालों में हायरिंग की प्रोसेस हुई, रैपिड हायरिंग की गई एंड रिक्रूटमेंट की गई, तो सीट्स फुल होती जा रही हैं। A time will come when the education sector of Bihar will reach to the saturation state, है ना, जब उसको और टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो टीचर्स गए हैं, चूंकि सरकारी सेटअप है, तो दे विल कीप डूइंग देयर वर्क और दे विल कीप enjoying the privilege of whatsoever they get till their 60s और 62s। तो मैं ऐसे समझूं कि अगर 25 साल के किसी लड़के की जॉब लग रही है गवर्नमेंट में, तो वो एक सीट को बुक कर रहा है, और उस एक सीट को वो लगभग आगे के 35 साल के लिए बुक कर रहा है। कहने का मतलब उस एक कैंडिडेट के कारण जो सैचुरेशन आ रही है, उस सैचुरेशन को खत्म होने में 35 साल लगेंगे। तो अगर बिहार सरकार के स्कूलों में टीचर्स वाली जो सैचुरेशन है वो बाई द एंड ऑफ 2026 पहुंच जाए, तो वो 30-35 साल बाद खत्म होगी। उसके बीच में काफी कम कम सी वैकेंसी आएंगी, 50, 100, 200, 500 टाइप की वैकेंसी आएंगी। बट व्हाट इज हैपनिंग, बच्चा ग्रेजुएशन में है, उसके परिवार में हो गए 2-3 टीचर्स, सबने बोला नहीं नहीं बीएड कर लो, बीएड कर लो, देखो बहुत आराम का जॉब है, आना है बैठना है, कुछ करना नहीं है, या कम क्लासेस लेनी है, 10 बजे आना है, 4 बजे आ जाना है, वो जो भी बातें कही जाती हैं। बच्चा बीएड कर लेगा, बीएड में इनरोल होगा, 2 साल रहेगा, या कई सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं एनईपी के थ्रू, उनके थ्रू आएगा वो। जब तक वो डिग्री लेके आएगा तब तक सैचुरेशन स्टेट पे पहुंचा हुआ है। सो जो करियर पाथ उसने चूज किया वो पाथ ही बंद है अब। दैट इज वाई स्टेम एजुकेशन इज नेसेसरी, कि बच्चा अपनी जरूरतों को खुद समझ पाए, बच्चा समझ पाए कि डिमांड्स कहाँ हैं, करंट सिचुएशन में डिमांड्स कहाँ हैं ज्यादा, नियर फ्यूचर में डिमांड्स कहाँ होने वाली हैं, कौन से करियर पाथ में ग्रोथ ज्यादा होगी, कौन से करियर पाथ में ग्रोथ कम होगी, कौन सा करियर पाथ उसको चूज करना चाहिए, कौन सा करियर पाथ नहीं चूज करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब
तभी मिल पाएगा जब बच्चे में कई सारी एबिलिटीज चाहिए होंगी। अगेन कौन सी एबिलिटी चाहिए होगी? एक लाइन ऊपर चलेंगे हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होगी एंड डिसीजन मेकिंग स्किल चाहिए होगी। नेक्स्ट, फॉस्टर एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग एंड इनोवेशन। अब वो जब हम स्टेम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं स्किल्स और एबिलिटीज पे। जब कई सारी स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप होती हैं तो थिंकिंग डेवलप होती है, इनोवेशन डेवलप होती है, कई सारे इनोवेटिव आइडियाज आने स्टार्ट होती है which can make Alanas a great entrepreneur. So वो चीजें भी डेवलप हो रही हैं। Now, moving further, we need to discuss about the key competencies that are targeted in STEM education. The very first is critical thinking. Second one is creativity and innovation. Third one is collaboration and communication with computational thinking. And then the fifth one is inquiry, skill and data literacy. And the last one is digital literacy and technology proficiency. We will be discussing about all these things in detail. The very first is creativity in STEM. Now, when we talk about creativity, ये वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, मैं ऐसे समझू दैट मेरे दिमाग, मैं जब भी इस वर्ड को सुनता हूँ क्रिएटिविटी, मेरे दिमाग में या तो कोई बच्चा आता है जो काफी सुंदर सी ड्राइंग बना ले रहा है या फिर काफी बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना दे रहा है। एम आई रॉन्ग? कैसा लगभग हम सभी के साथ नहीं होता कि जैसे ही हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं हमें ऐसा ही कुछ दिमाग में आता है कि बच्चा ड्राइंग अच्छा कर ले रहा है या बच्चा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें अच्छी कर पा रहा है। यस और नो, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आप जब एक्टिव रहते हैं आपकी मैसेजेस आती रहती हैं, वो हमें मोटिवेट करती रहती हैं बोलने के लिए। यस, कुछ लोगों में कुछ अलग अलग चीजें आ सकती हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर नो, है ना? यस यस यस, ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है ना। लैंग्वेज टीचर्स जो है वो क्रिएटिविटी जैसे ही आती होगी वो इमेजिन करते होंगे कि कोई बच्चा थोड़ा पोएटिक होगा, कुछ लाइन्स के साथ क्रिएटिविटी दिखा पाता होगा, वर्ड्स के साथ कुछ क्रिएटिविटी दिखा पाता होगा, कुछ लाइन्स लिख पाता होगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्रिएटिविटी इन स्टेम इज नॉट ओनली आर्ट, इट्स मोर देन आर्ट। सो व्हाट क्रिएटिविटी डज, क्रिएटिविटी इनोवेशन को फ्यूल करती है, इट फ्यूल्स इनोवेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन, इट्स नॉट जस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। मैं ऐसे समझ समझ डिस्कस करूँ इस चीज को दैट एक नाम है काफी फेमस, एलॉन मस्क। और हम जानते हैं कि वो क्रिएटिविटी उनके पास काफी ज्यादा है, काफी क्रिएटिव है वो, काफी सारी चीजों पे वो अपने अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते रहते हैं एंड दैट इज व्हाई वी सी कि आज वो किस लेवल तक सक्सेस है। सो क्रिएटिविटी fuels innovation. If a child is creative, child will try to innovate few things, and it is not only in the artistic way. In STEM, creativity also means thinking differently. 40 बच्चों की जो ग्रुप है जिसको हम क्लास कहते हैं, जब हम स्टेम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि उस ग्रुप से अलग होके भी कुछ सोचो। जो कन्वेंशनल मेथड है, जो पूरी दुनिया जिस तरीके से सोच रही है उससे थोड़ा अलग होकर सोचो। किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो पूरी दुनिया यूज कर रही है, ट्राई टू फाइंड a second solution of it which may be better, or multiple solution of it. And also when we talk about creativity, creativity in STEM also tells about designing original approaches to challenges. So ये सारी चीजें creativity है। Now again, why creativity matters in STEM? Very first thing is it encourages experimentation. Curiosity जो है, creativity जो है, ये शुरू ही ऐसे होती है। एक छोटे बच्चे को आप दे देते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आप रॉ मटेरियल्स पकड़ा देते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए दे देते हैं। कंप्यूटर के टीचर्स जो सबसे स्टार्टिंग वाली क्लासेस हैं, वहाँ बच्चों को कंप्यूटर लैब में लेके जाते हैं, पेंट ओपन करके दे देते हैं कि लो कुछ बनाओ। बच्चा माउस और कीबोर्ड का यूज कर करके कुछ बना रहा होता है। आप बच्चे को जब पेंटिंग सिखा रहे होते हैं तो शुरू की कुछ क्लासेस आप पेंट ब्रश और पेंसिल और स्केच पेन पकड़ा के छोड़ देते हैं कि हाँ कुछ तो लिखो, कुछ बनाओ, सो दैट वो
फ्रेंडली हो जाएं। बट इस वक्त हम ये देखते हैं कि अगर आप बच्चे को दे दें कोई बढ़िया सी सीनरी कि हाँ इसको ड्रॉ कर लो, या कंप्यूटर टीचर बोल दे कि चलो एक कोड लिख के दिखा दो, डेफिनेटली द चाइल्ड विल फेल। चाइल्ड की बात छोड़ देते हैं, ये जो पीपीटी है इसको बनाते वक्त मैं भी कई बार फेल हुआ होऊंगा, कई बार कई डिजाइन मुझे अच्छी नहीं लगी होंगी, कई बार कई लाइंस मुझे अच्छी नहीं लगी है, कई किसी पीपीटी किसी स्लाइड में मुझे लगा कि अच्छा ये काफी खाली खाली सा है, कोई स्लाइड यही वाली स्लाइड काफी भरी भरी सी दिखेगी, किसी में साइड में एलिमेंट्स बॉर्डर्स काफी कम दिखेंगे, किसी में काफी ज्यादा दिखेंगे। इस वाले में देखिए मैंने सिर्फ दो ही लगाए, एक तरफ टेलीस्कोप है, दूसरी तरफ एक गॉगल है, किसी में भर दिया जाता है। सो एक्सपेरिमेंटेशन को फ्यूल करती है क्रिएटिविटी। आप स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ करने से, और जब आप कुछ कुछ करने से स्टार्ट करते हैं तो आप फेल होते हैं। उस हर फेलियर से आप सीखते हैं, उस गलती से आप सीखते हैं और अगली बार उसको सुधारते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हम वहाँ करते हैं। केमिस्ट्री टीचर्स केमिस्ट्री लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ कुछ चीजें वो ट्राई करते हैं कि कुछ नया मिले उन्हें। फिजिक्स टीचर्स फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, वो ट्राई कर रहे होते हैं। लैंग्वेज टीचर्स हमारे लैंग्वेज की फील्ड में कुछ चीजों को क्रिएटिविटी दिखा रहे होते हैं। सो वी ऑल डू। नेक्स्ट इज फ्यूल्स डिस्कवरी। क्रिएटिविटी होगी तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, फेल होंगे, सीखेंगे, फिर ट्राई करेंगे। दिस प्रोसेस विल लीड टुवर्ड्स डिस्कवरी, नई चीजों को ढूंढने में। क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, यही तो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण डिस्कवरी होती है। अदरवाइज आप अगेन मैं न्यूटन साहब को काफी बदनाम किया जाता है ना, बच्चे गुस्सा करते हैं। आप जैसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देने लगिए ग्रेविटी वगैरह से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, बच्चे कहते हैं कि पता नहीं क्यों न्यूटन जी के सामने सेब गिर गया, इतना सारा प्रॉब्लम दे दिया उन्होंने, इतने सारे न्यूमेरिकल्स दे दिए उन्होंने, ये हो गया वैसा हो गया। अच्छा, ये तो उनके बचपने की बात है। सेब तो कईयों के पास गिरा होगा, अगर हम उस कहानी को सच मान भी लेते हैं तो सेब तो कईयों के पास गिरा होगा। बट देयर वाज अ पर्सन, उसको कुछ क्रिएटिविटी उधर दिखी, कुछ क्यूरियोसिटी उनको हुई, और उन्होंने उसके पीछे की गिरने की वजह को जानना शुरू किया। ऐसे ही कई सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, और उन डिस्कवरीज के पीछे कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको पढ़ने से या जिनको हम जब बताते हैं तो हमें ये पता चलता है दैट द वन रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी वाज क्यूरियोसिटी। भाई क्यूरियस हो गए। गैलीलियो गैलीली का नाम हम जानते हैं, हमने उनकी जीवनी पढ़ रखी है। नई चीजों को इनोवेट करने की चाह, जो कन्वेंशनल चीजें आ रही हैं, जो एक सेट प्रैक्टिस मेथड है उसको चैलेंज करना, उसके लिए काफी सारी सजा भुगतना, इन सभी चीजों को फ्यूल कर रही है क्यूरियोसिटी। बट उसके बाद आप एंड गोल देखते हैं, एंड रिजल्ट देखते हैं, आप ऐसा देखते हैं कि उनका नाम अब हमेशा लिया जाता है। whenever we talk about planets, whenever we talk कि नहीं भाई सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता, धरती सूरज का चक्कर लगाती है, और many more things, हम उनका नाम हमेशा लेते हैं। Now, links to core STEM competencies. Creativity supports critical thinking, collaboration and adaptability। तो जो हमारा STEM की competencies है, core competencies, critical thinking को develop करना, collaboration और adaptability, उनसे link करती है creativity। So इस बात पे ध्यान रखेंगे, when we talk about STEM we need to understand that STEM without creativity is just theory। हम कितना भी STEM STEM चिल्लाते रहे, बच्चे में अगर हम क्यूरियोसिटी नहीं ला पा रहे हैं, so everything is on pen and paper only, then it's all theory। so creativity हमें डेवलप करानी होती है, इसीलिए सबसे पहली चीज है with creativity it's become transformation। next is what is computational thinking। so definition की अगर हम बात करें, so computational thinking is a structure logical approach to problem solving, and it is also used in coding, research and design। This computational thinking helps students to break down, understand and solve complex problems efficiently। दो तरीके से समझते हैं, एक तो इसको कंप्यूटर
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देखेंगे, दूसरी इसको नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके। सो computational thinking is when you start thinking about anything in a structured way, means you very first thing, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम आई, तो आप क्या करते हो, आप तोड़ते हो उस कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम को, एंड देन यू स्टार्ट विद द फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो डिकम्पोजिशन जो हमारा पहला पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उसको आप तोड़ते हो, फिर आप देखते हो कि उसके मैनेजेबल पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजों पे एक्शन लिया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, उन पॉइंट्स को आप पहचानते हो। देन यू ट्राई टू फाइंड आउट दी पैटर्न, कोई ट्रेंड तो नहीं है, कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, या कोई ऐसा चीज है जो बार बार हो रहा है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में। एंड देन आप फोकस करते हो एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शंस मीन कौन सी बातें जिस पे आपको फोकस करना है, कौन सी बातें जिस पे आपको फोकस नहीं करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेशनल थिंकिंग इन जनरल लाइफ एंड रियल लाइफ, है ना, कंप्यूटर वाले पे आते हैं फिर। सो एब्स्ट्रैक्शन इज आल्सो नेसेसरी, एंड देन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मीन्स देन आप क्या करते हो, आप क्लियर करते हो जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको, और जो काम वाली चीजें हैं उनको लेते हो, उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हो। इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ भी हमें यही करना होता है। इन कंप्यूटर व्हेन वी टॉक अबाउट कोडिंग, हमें यही करना होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सी कोड है, उसमें कोई बग आया है या कोई इशू आई है, आप क्या करते हैं, आप पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि हाँ कौन सा हिस्सा है जो मैनेजेबल है, कौन सा हिस्सा है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। फिर उसमें कौन सी चीजें जिस पे आपको ध्यान देना है, कौन सी चीज पे ध्यान नहीं देना है, कौन सी चीजें जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, जिसके कारण कोई खास असर नहीं पड़ रहा, कौन सी चीजें जिस पे आपको गौर करना है। ऐसा करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज आल्सो वेरी नेसेसरी, जो कि स्टेम में हमें बताया जाता है, जो हमें बच्चों के अंदर डेवलप कराने की बात कही जाती है। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट इन स्टेम? वेरी फर्स्ट थिंग, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंटेशन। व्हाट इट डज, हाइपोथेसिस और टेस्ट वेरिएबल्स को ब्रेक डाउन करना है। कोडिंग में मदद करता है, एफिशिएंट राइटिंग, लॉजिकल कोड्स, एल्गोरिदम और एब्स्ट्रैक्शंस का यूज करके लिख सकते हैं हम। और डेटा एनालिसिस में मदद करता है, ट्रेंड्स को एनालाइज करना, फिल्टर की डेटा को, इनसाइट्स बिल्ड करना, इन सभी चीजों में कंप्यूटेशनल थिंकिंग मदद करती है ना। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर हम बात करें, सो अप्लाई लॉजिकल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव आउटकम्स। क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में अगर हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, स्क्रैच का यूज कर सकते हैं, ब्लॉकी का यूज कर सकते हैं, मैथ पजल्स, लॉजिकल गेम्स, डेटा सॉर्टिंग एक्टिविटीज को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए। स्टूडेंट्स को हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स असाइन कर सकते हैं जिसमें स्टेप वाइज प्लानिंग की जरूरत होती है, सो दैट उनके अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप हो। हाउ क्रिएटिविटी एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग वर्क टुगेदर। हमने क्रिएटिविटी की बात करी अलग अलग, हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करी अलग, कनेक्ट करके देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करती है। सो व्हाट हैपेंस, क्रिएटिव कंप्यूटेशनल थिंकिंग ऑफर्स स्ट्रक्चर एंड लॉजिक। स्ट्रक्चर्ड वे में काम हो रहा था, वहां स्टेप वाइज काम हो रहा था, तो स्ट्रक्चर और लॉजिक प्रोवाइड करने का काम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। क्रिएटिविटी ब्रिंग्स इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी। नाउ जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, तो इमेजिनेशन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ओरिजिनलिटी होगी, बट साथ में लॉजिक भी होगा, है ना। तो इमेजिन तो करेंगे, बट वो इमेजिनेशन मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं बनेंगे, है ना। वो कुछ ऐसी चीज नहीं होगी जो हाइपोथेटिकल होगी, जो सही नहीं होने वाली, हो ही नहीं सकती है। सो creativity is necessary for imagination, flexibility, originality, but computational thinking is necessary to keep it in a structured way, keep it logical, so that उस पे एक्शन लिए जा सके, काम किए जा सके। सो व्हेन कंबाइंड आपको कई सारे सॉल्यूशंस दिखते हैं, आप क्रिटिकली और डाइवर्जेंटली सोच सकते हो, काफी छोटी छोटी बातों पे आप गौर कर सकते हो, और काफी डाइवर्स होके आप सोच पाते हो, और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच
में आप काम कर सकते हो किसी भी आइडिया को, किसी भी इमेजिनेटिव आइडिया को रियल बनाने के लिए। और जब ये चीजें होती हैं तो जो रिजल्ट है हमारा वो क्या होता है, एक मीनिंगफुल इनोवेशन होती है। The next is project based learning, which we say PBL as an integrator. What is PBL? It is a teaching approach where students actively explore real world challenges and builds solution. So project based learning हमने तो ऐसा लगता है that we all do. प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को देते ही रहते हैं, कई सारे चार्ट पेपर्स बच्चे बना के लाते रहते हैं, कई सारे मॉडल्स जमा करते रहते हैं और भी कई सारे मेथड्स है जिसके थ्रू हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाता है स्टेम एजुकेशन में और ये माना जाता है कि ये स्टेम के लिए काफी इफेक्टिव है। द रीजन बिहाइंड इट इज इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन। आप ये देखते हैं जब भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात आती है, छोटी छोटी टीम्स बनती हैं तो कोलैबोरेशन बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ती है एंड स्टूडेंट ओनरशिप बढ़ती है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम तो स्टूडेंट्स का ही है, उसके लिए उनको अपनी एक टीम फॉर्म करनी होती है, तो कोलैबोरेट करना वो सीखते हैं एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना वो सीखते हैं। देन जिस क्रिएटिविटी और कॉम्पिटेशनल थिंकिंग की हम बात कर रहे थे, जिसको इंटीग्रेट करने की हम बात कर रहे थे, इसका प्रैक्टिकल यूज हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में दिखता है। क्योंकि बच्चों को क्या करनी पड़ती है, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कॉम्पिटेशनल थिंकिंग को ब्लेंड करना होता है और एक रियलिस्टिक, फ्रूटफुल, इमेजिनेटिव आइडिया पे पहुंचना होता है। देन इट सपोर्ट्स क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शन। कैसे क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शन? आई एम अ टीचर ऑफ साइंस, आई वाज टीचिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो सॉल्ट्स तक जब हम पहुंचे, I was talking about common salt, the sodium chloride, and I was to tell the students कि sodium chloride को obtain कैसे करते हैं naturally. So obviously we know the process. हमारे पास saline water का source काफी ज्यादा है. So there are two things that we can do. As a science teacher मैं directly बता सकता हूँ उनको कि समुद्र से पानी को लेते हैं, फिर evaporation वाली टेक्निक यूज करते हैं, उसके बाद बाकी का प्रोसेस होता है आगे और सोडियम क्लोराइड हम ऑब्टेन कर लेते हैं। या फिर मैं डांडी मार्च याद दिला सकता हूँ। याद है क्या हुआ था उधर डांडी मार्च में? चलो जरा बता दो। सो क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस जब आप क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शंस बिल्ड करते हैं? बोर्डम खत्म होता है क्लास से, क्योंकि कब से वो जो प्रेशर था, साइंटिफिक प्रेशर उनके ब्रेन पे, वो हटा थोड़ी देर के लिए, है ना। गांधी जी याद आए, हिस्ट्री की क्लास याद आई, साबरमती आश्रम याद आया मे बी, है ना, या कोई बढ़िया सी बीच याद आई। क्योंकि बच्चे तो क्रिएटिव होते हैं, हमें क्या करना है, उस क्रिएटिविटी को टैप करना है और उसको नर्चर करना है ना। सो क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शंस बनाने से कई सारे फायदे हो जाते हैं। देन इट promotes deep engagement and lifelong learning mindset. ध्यान देंगे, मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। व्हेन वी ऑप्ट द मेथड ऑफ स्टेम एजुकेशन, एंगेजमेंट बढ़ती है बच्चों की, बच्चे एंगेज होते हैं अपनी लर्निंग में। साथ ही साथ जो उनकी माइंडसेट होती है उसमें ऐसी बदलाव आती है कि वो खुद ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट वो सीख रहे हैं, जो भी चीज वो याद कर रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो उनकी। सो दे विल ट्राई टू कनेक्ट इट विथ रियल लाइफ, दे विल ट्राई टू get a deeper meaning of the topic or of the subtopic or any particular point, I can say. So in this way we can understand कि हम STEM education की तरफ है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सो एक प्रोजेक्ट आइडिया है, रीडिजाइन अ स्कूल बैग। काफी सिंपल सा प्रोजेक्ट आइडिया है ना। सपोज इस आइडिया को दिया जाता है ना, दिस इज द प्रोजेक्ट, कि आप क्या करो, स्कूल बैग जो है आपका, उसको रीडिजाइन करो। आप समझते हैं
सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट रीडिजाइनिंग, तो फोकस क्रिएटिविटी पर है ना, बट कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ भी कनेक्ट करेंगे, बिकॉज हमारा काम सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाना नहीं है, हमारा काम है स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करना, जहाँ क्रिएटिविटी और कंप्यूटेशनल थिंकिंग साथ साथ चलती है। तो क्रिएटिविटी की अगर बात करें, अगर प्रोजेक्ट है रीडिजाइन स्कूल बैग, क्या करना होगा? तो पहले तो ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, नई नई चीजें ढूंढनी होगी, है ना, कोई फोल्डेबल डिजाइन मिल जाए, या बैग में कोई सोलर चार्जिंग पॉकेट का फीचर ऐड हो जाए, या कुछ तो ऐसा। फिर मटेरियल ढूंढना होगा कि अच्छा रीडिजाइन करना है, तो चलो मटेरियल बदल देते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल लेके आते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल लेके आते हैं, या कोई हल्का मटेरियल लेके आते हैं, बट यस, लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल लेके आते हैं। या फिर एस्थेटिक एलिमेंट्स ढूंढने होंगे, है ना, कि कलर कौन सा रखें, एग्रोनॉमिक्स का ध्यान रखें, है ना, करंट फैशन और ट्रेंड का ध्यान रखें। ये सारी चीजें क्रिएटिविटी से रिलेट करती हैं। देन द कंप्यूटेशनल थिंकिंग फोकस क्या है? डिकम्पोज एग्जिस्टिंग बैग डिजाइन। अब आप समझिए क्रिएटिविटी क्या है, कि आपने दिया भाई स्कूल बैग डिजाइन करो, बच्चे ने मन में सब इमेजिन कर लिया कि अच्छा मेरा वाला बैग तो काफी सिंपल है, हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है उसमें का ये वाला कपड़ा हटा के दूसरा वाला कपड़ा लगा देंगे, हम इस तरीके से डिजाइन कर देंगे, वगैरह वगैरह। सारी बातें उसने इमेजिन कर ली, इमेजिनेशन इज गुड, वो यहाँ है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग, क्या करना होगा? डिकम्पोज एग्जिस्टिंग बैग डिजाइन, वो जो भी बैग की डिजाइन है उसको डिकम्पोज करना होगा। डिकम्पोज मतलब समझना होगा कि बैग का कौन सा हिस्सा कैसे बना है, कौन सा हिस्सा कैसे कनेक्टेड है, अगर हम उसको मुझे उसको डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट करनी है तो कैसे करना होगा, ये सारी बात समझनी होगी। देन द चाइल्ड विल हैव टू रिकॉग्नाइज द यूजेबल पैटर्न। यूजेबल पैटर्न्स क्या है? बैग में इश्यूज कौन कौन सी आती हैं? ओवरलोड हो जाते हैं बैग, जिसमें एक होता है बैग का वजन खुद का। लाइक आप ऑफिस जाते हैं, आप में से काफी सारे लोग लेदर बैग कैरी करते होंगे। व्हाट वी सी, लेदर बैग अच्छा लगता है देखने में, चाहे वो बैकपैक हो या साइड बैग हो, अच्छा लगता है, जेन्युइनली अच्छा लगता है, बट वो भारी होता है। वो बैग अपने आप में अप्रोक्सीमेटली हाफ केजी का होगा, उसके ऊपर से और भी जो चीजें आप डालते हैं तो ओवरलोड वाली प्रॉब्लम आती है। अच्छा, बच्चा छोटा है, बैग बड़ा सा आ जाता है, वेट इम्बैलेंस होता है, किताबें ऐसे ऐसे डांस कर रही होती हैं अंदर, और भारी किताबों के कारण छोटा सा बच्चा वो खुद भी बैग के साथ ऐसे ऐसे डांस कर रहा होता है, वेट इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम आ रही है। देन एब्स्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटीज, फंक्शनैलिटीज जो है बैग की, वो कौन कौन सी बैग में दी गई हैं, कौन कौन सी होनी चाहिए। लाइक 9th 10th के बच्चे जो हैं वो स्कूल बैग लेके आते हैं, उनमें लैपटॉप कंपार्टमेंट होता है, उसमें यूएसबी चार्जिंग फीचर होती है। क्या इसकी फंक्शनैलिटी की जरूरत है मुझे? नहीं है। सिंस मुझे ये दिया गया है कि स्कूल बैग को रिडिजाइन करें, ध्यान देंगे, स्कूल बैग को रिडिजाइन करें, मैं चाहूँ इसको हटा सकता हूँ, मैं यहाँ कुछ और चीजें डाल सकता हूँ। नेक्स्ट, डेवलप अ रीडिजाइन एल्गोरिदम। देखते हैं हम रीडिजाइन एल्गोरिदम करिए। सो कॉम्पिटिशनल थिंकिंग ने क्या दिया? आपका इमेजिनेशन, दैट इज गुड, वेरी गुड, बट उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए जो स्टेप वाइज अप्रोच की जरूरत है, वो स्टेप वाइज अप्रोच आती है कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग से। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि स्टेम एजुकेशन में कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ये दोनों ब्लेंड होकर काम करती है। अगेन, दिस इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया, सॉल्व अ लोकल प्रॉब्लम, है ना, रिड्यूस लिटरिंग अराउंड कैंपस, कैंपस में लिटरिंग को कम करना है। अगेन दो तरीके से सोचेंगे, क्रिएटिविटी फोकस एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग फोकस। क्रिएटिविटी फोकस क्या है? अवेयरनेस कैंपेन कैंपेन डिजाइन कर ले, वीडियोस प्रिपेयर कर लें, पोस्टर प्रिपेयर कर लें, मीम्स बना दिए जाएं, बच्चों में तो फेमस है मीम्स, ताकि ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। दैट्स क्रिएटिविटी। देन इनोवेटिव कलेक्शन बिन्स, वो क्या है? कि बढ़िया बढ़िया से स्मार्ट बिन्स लेके आ जाएं, कलर कोड सिस्टम्स लगा दिए जाए, मतलब फोकस किया जाए कि हर तरफ डस्टबिन हो, एकदम अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव से डस्टबिन हो, ताकि बच्चे उसको यूज करने लगे। कम्युनिटी को एंगेज करने की आइडियाज आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराई जा सकती, दीज ऑल थिंग्स आर क्रिएटिव।
ये सारी की सारी आइडियाज क्रिएटिव है। नाउ कॉम्पिटिशनल थिंकिंग फोकस, मेरा मोटो क्या है, लिटरिंग जो है कैंपस में उसको कम करना है। मुझे कंपटीशन कराना नहीं है, मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए कि जो प्रॉब्लम हो रही है कैंपस में गंदगी वाली वो कम कर देनी है। तो सबसे पहले तो समझना होगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लिटरिंग, उन कॉजेज को समझना होगा, फिर पैटर्न समझना होगा कि अच्छा कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी हो रही है, कैंपस का कौन सा हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी हो रही है, किस टाइम पे गंदगी हो रही है, किस टाइप की गंदगी हो रही है। लाइक मेरा प्लेग्राउंड काफी बड़ा है, सुबह सुबह बेचारे स्वीपर्स ब्रूमर्स जो हैं वो झाड़ू लगाते हैं, साफ सब कुछ साफ वाफ करते हैं, शाम तक पूरा पत्ते से भर चुका होता है। तो मैं क्या इसे बच्चों की गलती मानूं? क्या मैं उसके लिए डस्टबिन लगवा दूं, प्लेग्राउंड साफ हो जाएगा? डस्टबिन वाला आइडिया काफी अच्छा है बट इस वाली प्रॉब्लम के लिए नहीं है वो, क्योंकि यहाँ बच्चों ने गंदगी नहीं फैलाई है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड सी दी लोकेशन कि भाई किस जगह गंदगी हो रही है, किस वक्त गंदगी हो रही है, किस टाइप की गंदगी हो रही है, कौन कर रहा होगा वो। देन नाउ थिंक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट एक्शनेबल एलिमेंट्स, कौन कौन से एक्शंस आप ले सकते हैं सो दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देन डिजाइन द प्लान, पहले मॉनिटर करेंगे, फिर नोटिफाई करेंगे, कलेक्ट करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। दोनों को अगर आप ब्लेंड करें तो यू विल गेट अ ग्रेट आइडिया, जिससे कि कैंपस के अराउंड लिटरिंग वाली जो समस्या है वो कम हो जाए। नाउ टिंकरिंग लैब्स के बारे में हमने सुन रखा है, व्हाट इज टिंकरिंग लैब, हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे इसको। तो टिंकरिंग लैब हैज अ स्पेशल स्पेस फॉर स्टेम एक्सप्लोरेशन। ये एक ऐसी जगह होती है जहां स्टूडेंट बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, इटरेट करते हैं आइडिया, जो किट्स हैं उनके थ्रू सर्किट्स, टूल्स और सॉफ्टवेयर ये रखे जाते हैं टिंकरिंग लैब में, जिसकी हेल्प से बच्चे काफी सारी चीजों को बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। टिंकरिंग लैब इनकरेज करती है स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए, और साथ ही साथ ये डेवलप करती है कई सारी 21st सेंचुरी स्किल्स। और ये 21st सेंचुरी स्किल्स कोई और नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इनोवेशन, परसिस्टेंस, बस यही है ना। एनवायरमेंट फोकस अगर बात करें तो सेफ है, क्योंकि मॉनिटर्ड होता है ना, टीचर मॉनिटर करते हैं। कोलैबोरेटिव है, क्योंकि बच्चे आपस में मिलकर काम करते हैं, टीचर के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है फ्रेंडली होती है, क्योंकि जो भी आप किट्स रखते हैं, सर्किट्स रखते हैं, टूल्स रखते हैं स्कूल्स में, ये सोच समझ के रखा जाता है, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन अ टिंकरिंग लैब टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर नॉट अ लेक्चरर। अगर मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को टिंकरिंग लैब लेके जा रहा हूँ, दरवाजे से एंटर करते ही मेरा रोल चेंज हो जाएगा, आई विल बी द फैसिलिटेटर, मैं फैसिलिटेट करूंगा, बच्चे को कोई किट चाहिए मैं किट दे दूंगा, बच्चा जानना चाह रहा है इस किट का काम क्या है, मैं किट का काम बता दूंगा। बच्चे को लग रहा है कि ऐसा वाला टूल होता ना तो हो जाता, मैं वो टूल मंगवा दूंगा या उसको बनाने सिखा दूंगा, या उसको टूल की ऑल्टरनेटिव समझा दूंगा। आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट फोर्स द चाइल्ड टू डू इट। आई एम नॉट द लेक्चरर, आई एम नॉट द टीचर देयर, आई एम अ फैसिलिटेटर। वहां बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इज अ लर्निंग जर्नी। हर बार जब बच्चा एक प्रोजेक्ट को बनाता है, बच्चा अपनी क्रिएटिविटी और कॉम्पिटिशनल थिंकिंग को अप्लाई करता है, तो कुछ ना कुछ वो सीखता है। द लर्निंग फोकस इज tangible creation. These are examples basically. टिंकरिंग एनवायरनमेंट में फैसिलिटेट कैसे करें? मैं क्या बता रहा था, मुझे एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर नहीं, मुझे एज अ मेंटर काम करना है। आई कैन गाइड द एक्सप्लोरेशन, आई कैन encourage questioning in the tinkering lab. As a teacher, I will have to support the students, I will have to motivate them to lead the initiatives, and I will have to let them drive the problem selection. As a teacher, we need to promote collaboration in the tinkering labs. Peer learning को promote करनी है, उधर team problem solving को promote करनी है. Then we can encourage the safe experimentation where there is no fear of failure. Then the most important thing, we need to document the learning. Videos के through कर ले, journals के through कर दे, prototypes के through कर दे, reflections. We need to document that learning. Now, what are the practical steps that a teacher can encourage questions over answers? What we generally do, हमारा काम क्या है, हम क्लास में जाते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, दैट्स द
प्रोसेस हमेशा चलता है, काफी लंबे वक्त से चलता है। एंड STEM एजुकेशन वी नीड टू शिफ्ट इट, वी नीड टू इनकरेज देम टू क्वेश्चन। मैं बताऊं मैं क्या करता हूँ, whenever I go to class, कोई टॉपिक स्टार्ट होती है, मैं अपने एंड से समझाता हूँ चीजें और फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं कहता हूँ अच्छा बच्चे कोई डाउट यहाँ पे, पूछ लो कोई डाउट है तो, थोड़ा ध्यान से सोचो। मैं बताऊँ मेरे क्लास को अब आदत हो गई है, इफ आई से कि कोई डाउट है पूछ लो, दे नो कि कोई ना कोई डाउट तो होना चाहिए, सो दे दे ब्रेनस्टॉर्म कि ढूंढो कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो हमसे मिस हो रहा है, इसीलिए सर बार बार ऐसे टोक रहा है। सो दे फाइंड, दे जनरली फाइंड कि कौन सी प्रॉब्लम है, वो पूछ लेते हैं वो सवाल। समटाइम्स दे डोंट, सो मैं उनको बताता हूँ कि ये वाला सवाल क्यों नहीं आया। लाइक साइंस टीचर्स, केमिस्ट्री टीचर्स विल रिलेट, हम जब बात करते हैं सोडा की, वॉशिंग सोडा की बनाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक बार सोडा ऐश का फॉर्मेशन होता है, फिर वाटर ऐड करके हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं। सोडा ऐश का जहाँ फॉर्मेशन होता है वहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होती है और वाटर साथ में बन रहा होता है। मेरा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन बच्चों से ये आया है कि बच्चा यहाँ भी तो वही दिख रहा है, फिर नीचे भी हमने पानी ही ऐड किया, क्यों करूँ मैं? सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के मन में, मैं वहां आंसर पुट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों के दिमाग में वहां क्वेश्चंस की सीड्स डाल रहा हूँ, सो दैट वो क्रिएटिव हूँ, वो क्रिएटिविटी उनके अंदर है कि अच्छा हाँ ये तो होना चाहिए था, ये सवाल तो मेरे मन में आना चाहिए था, आया क्यों नहीं? सो वी नीड टू encourage questions over answers, we need to create a safe space for failure and curiosity, and for that I'll uh, share a very short instance. There was a counselor at a school campus, और उसने बातों ही बातों में घुमाते घुमाते पूछा कि स्कूल में डरते नहीं हो? बोलता नहीं सर, स्कूल में क्यों डरो? A child said, नहीं सर स्कूल में क्यों डरो, स्कूल इज a very safe place, teachers are very cooperative with us, principal sir is very cooperative. So that was a very good thing. If a child is feeling safe, बच्चे को लग रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ फेल हो सकता हूँ, लैब में, टिंकरिंग लैब्स में, क्लासरूम क्वेश्चंस के टाइम में हमें आंसर करने में फेल हो सकता हूँ, उस पे मेरी क्यूरियोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आई लर्न एंड आई एक्सेल, दैट्स अ गुड थिंग। देन हाईलाइट द इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, लाइक आई वाज टेलिंग कि भाई मैं नमक ही बता रहा था बट मैंने डायनेमा से कनेक्ट किया। सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हाँ वहाँ हुआ तो था, सोशल साइंस में पढ़ाया गया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, सेलिब्रेट प्रोसेस, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। काफी सारी चीजें सीखनी है बच्चे को। बच्चे ने शुरुआत करी, पहली चीज सीखी, सेलिब्रेट इट, प्रेज द चाइल्ड, एंड देन मोटिवेट फॉर द नेक्स्ट थिंग। इससे होता क्या है, बच्चा तैयार हो जाता है। लाइक इन स्टैंडर्ड नाइन्थ न्यूमेरिकल्स आती हैं, टीचर्स जनरली स्टार्ट विथ द वेरी इजी क्वेश्चंस, तो बच्चे फॉर्मूला से काफी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, बनाने लगते हैं। टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं, वेरी गुड, यू आर वेरी गुड एट न्यूमेरिकल्स, फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाने लगते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग द प्रोसेस, और प्रोसेस को सेलिब्रेट करते करते मोटिवेट भी कर रहे हैं। दे आर नॉट एट द रिजल्ट, वेट नहीं करेंगे अच्छा देखते हैं बोर्ड में कितना लेके आते हो, दे आर सेलिब्रेटिंग द प्रोसेस एंड दे आर making the child ready to get a good result. So these are all things. Assessment in STEM. Now creative ideation आप यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, कोलैबोरेशन एंड कंट्रीब्यूशन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये सारी चीजें हम लोग देते हैं। कई सारे असेसमेंट मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, बट वन थिंग दैट इज वेरी नेसेसरी, दैट whatever may the method you choose for the assessment, it is very important to document it, and it is very important that a child should reflect, or the gap that you want to get reflected, or the process that you want to get reflected, that should reflect. So this was, I think, the whole lecture part from my side on this topic, STEM education, creating curiosity and cultivating a creative mindset in STEM education. So if you have any doubt related to the topic about which we discussed, you may please ask in the chat box.
Okay, thank you very much. Thank you very much to all of you for joining this session and being such a nice audience. Keep on replying to all my questions, which helped me in discussing the whole topic in a very lively way. Thank you very much. I would also like to thank Patliputra Sahodya, who gave me the chance to act as a resource person on this particular beautiful topic. Thank you.